Somebody asked me why, as a doctor, I chose this subject. मुझे क्या ज़रूरत थी इसके अंदर में? Now, as a medical doctor, we face lots of problems. Some people come and ask us, कि hospital में prayer room क्यों नहीं है? I want to pray. Where should I pray? Some people come to us and say that some patients request us that we should pray with them. Some people expect, if there is a death in the hospital, that one of the hospital representative should go to the cremation ground and pay homage. Many people expect that when a person dies, we must respect the dead body. That means, अगर मैं किसी patient को declare करता हूँ, तो I must respect the dead body, say sorry to the dead body, touch his feet, and say sorry to the family that I have not been able to. They want some custom. Some people want that. This is my 30 years of experience. And many times I have annoyed people because I have heard their sentiments. And today, when there is a medical tourism, from every country people are coming. In India, we have 9 religions, and every religious person is getting admitted with us. We need to know their sentiments. If we listen to each one of them, we will come out with a white paper and try to circulate it to the medical community, at least to the medical community. This is what every religion expects from us when their patient is admitted, whether he becomes all right or not. I have requested all my speakers to limit their talk to a short introduction. I have given each one of them 5 questions. One of my questions is, should hospitals have prayer rooms? Are doctors expected to pray with their patients? Is there a role of a prayer in a disease? Is there a role of prayer in health? And obviously, I will like each one of them to talk about one line on, is there a difference between a prayer and meditation? Now, I'll request our Bishop Ji, Shri Dr. Karam Masri Ji, he's a Bishop, Church of North India, to talk about the Christian's perspective as far as prayer is concerned. And we know that in Christianity, prayer has a lot of role, and they have a compulsory that once in a week, everybody has to go to the church and perform a prayer. अभी डॉक्टर अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि पोलो हॉस्पिटल इज़ द फर्स्ट हॉस्पिटल टू स्टार्ट द प्रेयर रूम इन द कंट्री. You said. I don't know, in Delhi at least. So you said in Delhi, okay. But I'll go with St. Stephen Hospital in Delhi, which is the private hospital, is the one of the oldest hospital in Delhi, if you know about the history of St. Stephen Church. One of the oldest hospital in Delhi. And we have from the very beginning a chapel called the prayer room. And every morning, everybody like to go in the chapel, go and say his own prayers in his own language. इसमें धर्म की कोई बात नहीं. चैपल रखा जाता है, हर आदमी उस चैपल में जाके अपनी आस्था के मुताबिक प्रार्थना कर सकता है. ये तो सवाल हो गया कि हमारे पास, मैं अपने पर्सपेक्टिव यानी कि क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में जो दिल्ली के अंदर सबसे पुराना हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो वहाँ पहले ज़माने से लेके अब तक यानी कि 100 साल से ऊपर हम हो गया है. दिल्ली के अंदर 100 साल वी आर सर्विंग द दिल्ली पीपल इन द एरिया ऑफ हेल्थ, स्पेशली इन द वेमेन्स हेल्थ. दूसरा सवाल ये कहा है कि डॉक्टर भी प्रार्थना करते हैं मरीज़ के लिए, या मरीज़ के प्रार्थना जो उनके साथ लोग आते हैं उनको भी प्रार्थना की ज़रूरत होती है. ये याद रखें, खाली हम पेशेंट के लिए ना प्रार्थना करें बल्कि उसके परिवार के लिए, और जो लोग उसको लाते हैं, जो वहाँ अटेंड करते हैं, अटेंडेंट्स के जो होते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें. बिकॉज दे नीड ऑल्सो द स्ट्रेंथ फॉर प्रेयर. उनको भी ताकत चाहिए ताकि वो अपने मरीज़ के बारे में या उसकी जो भी डिजीज़ है उसके बारे में वो भी एक ताकत हासिल करते हैं थ्रू द प्रेयर्स.
I can tell you, one of the doctor, American doctor, Dr. Rambo, he was an eye specialist in 1960. 1960 में मैं उनके कैंप में काम किया है। हर रोज़ ऑपरेशन से पहले घुटने टेक कर ज़मीन पर सब लोगों को जमा करके एक भजन गाना और फिर प्रार्थना करना, ये उनका रूटीन था। इसलिए डॉक्टर भी उतने ही ज़रूरी हैं प्रार्थना के लिए, मरीज़ों के लिए, जितने धार्मिक गुरु हैं। और मैं सोचता हूँ कि धार्मिक गुरुओं से ज़्यादा डॉक्टर्स की प्रेयर जो है उस वक्त जब वो ऑपरेशन शुरू करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कहा गया है कि प्रेयर और मेडिटेशन में तो मैं सोचता हूँ कि कहा गया काफ़ी, इसके ऊपर तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेयर में तो मेडिटेशन में से लॉट ऑफ डिफरेंट। इसके लिए और भी जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं बोलेंगे। एक बात मैं और ज़रूर कहूँगा कि प्रार्थना कितनी लंबी होनी चाहिए, उसका कितना दायरा होना चाहिए, मैं नहीं सोचता हूँ कि हम इसको नाप लें। कितनी लंबी प्रेयर करेंगे, कई तो बहुत कितने श्लोक पढ़ना है, पर हम अब बाइबल के मुताबिक आपको कहेंगे कि सिर्फ 3 शब्दों में अगर आपकी प्रेयर 3 शब्दों में काफ़ी है तो मैं सोचता हूँ कि इसको आपको संभालना चाहिए। अंग्रेज़ी में तो ऐसा है, दाई ग्रेस इज़ सफिशेंट फॉर मी, आपका रहम ही मेरे लिए काफ़ी है बस। अगर वो नहीं है तो कितनी लंबी आप प्रेयर करेंगे, कितना आप श्लोक पढ़ेंगे, कितना जाएं, भाग लो, दौड़ लो, अगर वो ऊपर वाले का रहम आपके ऊपर नहीं है तो कितनी लंबी प्रेयर किसी फ़ायदा में नहीं पहुंचेगी। मैं सोचता हूं कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दाई ग्रेस इज़ वेरी सफिशेंट फॉर मी, तेरा रहम ही मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं इन्हीं शब्दों में एक और भी आखिर में कह सकता हूं कि जब कभी मेडिसिन, डॉक्टर्स किसी जगह फेल हो जाते हैं तो शायद वो परिवार को कहते हैं कि अब तो इसको ले जाओ, प्रार्थना के द्वारा ही बच सकता है। तो प्रार्थना में इतनी शक्ति है, हम शब्द क्यों कहते हैं कि द प्रेयर्स आर द ग्रेटेस्ट वेपन। ये इतना बड़ा हथियार है कि आप इसको इस्तेमाल करें तो ये सब आपको जीत दिलाता है। तो प्रेयर में इतनी शक्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेडिकल स्टडी हुई थी जिसके अंदर में उन्होंने 100 पेशेंट्स लिए आईसीयू के अंदर में, सेम टाइप के पेशेंट्स, 100 के 100 पेशेंट्स अनकॉन्शियस थे। 50 लोगों के सामने उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सिस को भेजा और बोला अब नेगेटिव बात करो। दे स्टार्टेड टॉकिंग टू द पेशेंट रिलेशंस। पेशेंट बेहोश है, उसके सामने बात कर रहे हैं तो बचने वाला नहीं है, इसकी बीमारी तो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, इसको बचाने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव। अनदर 50 दे टॉक पॉजिटिव, कोई बात नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, बस ठीक होने वाला है, नाउ इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड, इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड, इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड, इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड। एंड द रिजल्ट्स वर दैट जहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव प्रेयर करी और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में बात करी, the results were better. More people revived and survived. So there is a allopathic evidence that subconscious mind is listening. Apart from prayer, the God is listening, but the subconscious mind is also listening, and a person can become all right. If you think that God is within you, then He is also listening. And if you do a prayer, and if He also listens, the inner body heals. There is one more thing that somebody may be imagining that दवाई कैसे काम करती है allopathic. Can anybody tell me? एलोपैथिक दवाई मेरे शरीर में काम करती है, वो जाके एक रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करती है, और जब उसको रिसेप्टर मिल जाता है तो दवाई काम करती है, रिसेप्टर नहीं मिलता तो दवाई यूरिन या सूल के माध्यम से बाहर निकल जाती है। दैट मीन्स माई बॉडी हैज़ ए रिसेप्टर फॉर ईच एंड एवरी ड्रग। इफ माई बॉडी हैज़ ए रिसेप्टर फॉर ईच एंड एवरी ड्रग, दैट माई बॉडी हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दैट ड्रग. It's like lock and key. If my body has a lock, then if the body has a key, then there is also a lock. My body has the capacity to heal every disease. That means my consciousness knows how to heal. You only need to pass on a message to the consciousness, and that's what prayer is.